Thank you. Introduce me. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, all of you, for coming. It's really, and I've got a lot of new people coming in here for the first time. I really appreciate you all are welcome. Prabhu will welcome you as well. But just quick housekeeping. Where's Vinita Mataji? So I'm gonna do some housekeeping first. On this street, if you have parked your car on this street, please move it and park it on this street. Because neighbors को थोड़ा सा problem होता है, तो we don't want to create any problems, है ना? तो green patch पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गाड़ी. अगर आपकी है, we will go around. We'll take a round afterwards. कोई गाड़ी खड़ी होगी, we'll come and ask you ये नंबर की गाड़ी है. तो please अगर आपको पता है आपने इधर खड़ी करी है, तो please move it this side. एक तो ये. दूसरा, Vinita Mataji, what was the one that I was going to talk about? I forgot. I have in my मेरा laptop को बैग देना please, वो पड़ा उधर. हाँ, RSVP, yes. So you know why we do RSVP. We want to do RSVP so that we have enough prasadam. So please make sure your RSVP is with us on Thursday night. उसके बाद क्या होता है कि people have already prepared, like setup कर लिया है सारा. Friday morning को भी अगर कोई RSVP करता है, no problem. Problem happens when you are RSVPing in the afternoon or in late evening. तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि we don't have, क्योंकि how do we prepare food then, So हमारी पूरी एक team है, they actually do catering. This time it's Mamta Mataji, she's organizing all the food today. But in general, please make sure that you RSVP to us before midnight on Thursday night. Yeah? So that Wednesday night. So Thursday and Friday we have to, enough time for us to organize it. That's one thing. Second is, we will have a lot of spaces for Deepdan, and we have Nagesh Prabhu. We did a Deepdan at his house. It was really nice, very nice program, and I think you got some of your friends here as well. That's really nice. So these Deepdan are there for us to introduce spirituality to people. So what's happening now is those Deepdan slots are still available for the rest of the month. Not rest of the month, until the 16th. Now 16th we have a booking. We have a booking on the 11th, but the rest of the days are free. If you want to do a Deepdan, please let us know. We will organize. We'll come to your house and we'll do a Deepdan. The only condition is, please don't invite this Bhakti Raksha. Invite your friends, family, people who are not connected to spirituality. Invite them so that they can get introduced to these spiritual talks. And once they come to those spiritual talks, we can tell them we have a platform here on a Friday where we do this program so that people can get connected. If a child is lost, the most amazing feeling a parent has is when someone brings their child back to them, So a lot of people are lost child outside, like on a Friday night, a lot of people are not here. They're not doing spirituality. They're like lost kids. If we can connect them to Krishna, that will be the best thing you can do. If you can connect them to Krishna. And this is the very amazing golden opportunity for you to connect your friends, family members, people who are not into spirituality, to bring them to these programs so that they can get connected. And during those Deepdan, please make sure that your prasadam that you're doing is very, very simple. Don't do elaborate. It's not a birthday party or it's not an anniversary and things like that. It's keep it simple for the Deepdan and stuff, Where simple dal chawal and raita. That's enough, Don't have to go elaborate, because then it becomes a lot of burden for a lot of people, This is not to put burden on people. It's actually to take a lot of things away from them and bring people to spirituality as well, okay? So now we have Swarni Krishna Prabhu, Sandeep Prabhu. He is my mentor, है ना? ये मेरे शिक्षा गुरु हैं. और मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि I had a person who I used to attend the classes for, so he used to give those classes. 2014 में प्रभु जी and Mataji, Geetan Mataji. So that's Geetan Mataji. She is very, very good in. So when she used to run this program when she has a 6-month-old baby in her hand, and she used to cook on her own with another lady, and they used to put the prasadam for almost 50-80 people every Friday.
and she had a small little baby as well. So that's a dedication they had in 2014 I'm talking about. Since then they have done multiple Bhakti Rakshas and they have cultivated many people into Bhakti, and we are really grateful for him, and he's gonna be actually doing the class today, and he will be welcoming the new people as well. Thank you very much. Please say Hare Krishna. We'll say Hari Bol to Prabhu 3 times loudly. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for this one. So I'll just quickly say a prayer and then I'll start. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschate Dasapane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukham Karoti Vachalam Panghum Langayate Girim Yat Kripatam Aham Bande Guru Yat Kripatam Aham Bande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all very much. Thank you for coming to this program. You've given your Friday evening to this program, so thank you very much. Thank you to those people who are regular in this program, and also thank you to all of you who are new. I've been told there are a number of people who are new here. Could you please raise your hands? All of those who are new, who've come here for the first time. Okay. Wonderful. Thank you very much. Give a round of applause for you. Thank you very much. We really appreciate you coming here, and we hope and pray that you continue with us, in this program. So thank you very much. We really appreciate it. Okay, so today's program is a very, very special program for a number of reasons. But let me mention the first thing first. Today's program we want to dedicate to this beautiful soul, this beautiful child, Pratham. So we are dedicating today's program to him. All of you, many of you know that, Pratham and as well as the family themselves, they are going through a bit of a hard time, a bit of a challenging time, So we want to dedicate this class to Pratham's well-being and uski recovery ke liye, Let us just take a moment of a silent prayer for a few seconds to make, in our own words, prayer or petition to the Lordships in our heart. Ki please Bhagwan, please let him recover, let him come back to normalcy. Okay. Let's close our eyes and just make this prayer for him. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So, and Prashad, this whole program is basically organized by them. It's inspired by them. They've sponsored. They've also cooked for the program, organized the cooking for this program. The Prashad at the end, which we will serve. So, of course, we will do another prayer towards the end as well. But just wanted to call out, please keep him in your prayers, and we thank the family too and the others who have contributed in organizing today's program for the well-being of Pratham. Okay, thank you. Hare Krishna. Okay, so
आप लोग वैसे काफ़ी लोग तो शायद मुझे जानते हैं, शायद नथिंग, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें जानने के लिए, बट whatever it is, I gave class couple of weeks ago here. So let me ask the question, let me begin the class by asking you a question, because some of you आप काफ़ी लोग रेगुलरली आते हो इस प्रोग्राम में, तो let me ask you a question. So मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करूँगा, हाँ. जब the more I warm up, I'll speak in English, in Hindi. Starting में English will flow, you know. As I warm up, it will be more Hindi, you know. So आप लोगों को सबको पता है कि हम कौन है? जीव, हाँ, जीव. भगवद गीता जिसने पढ़ी है उसको पता है कि हम कौन है? जीव. एंड जीव के साथ और दूसरी एंटिटी कौन है? भगवान. हाँ. What is the relationship between a जीव एंड भगवान? भगवान और जीव के बीच में क्या रिलेशनशिप है? कौन आंसर करना चाहेगा? यस, आई सॉ यू फर्स्ट. आप पहले रेड. यस माता. माइक. जीव और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है? She doesn't want to answer. She was just saying. But you can give it a shot if you want. Okay. Sorry, I thought you were saying. If you don't want, that's okay. माताजी, over to you. आप बताइए माताजी. ईश्वर अंश जीव अविनाशी. ईश्वर अंश जीव अविनाशी. जीव अविनाशी. फैंटास्टिक. अविनाशी भी हैं और उसके अंश. हम उनके अंश हैं. करेक्ट. और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? यस माताजी प्लीज. मैं नर हूँ, तुम नारायण हो. मैं नर और वो नारायण. ठीक है. और कुछ? और कोई? वंडरफुल. और कोई? यस प्लीज. आत्मा परमात्मा. फैंटास्टिक. यस. क्या रिश्ता है हमारा भगवान से? हमारी क्या ड्यूटी है भगवान के प्रति? ये सब फैंटास्टिक आंसर्स हैं. हम ये जस्ट बिल्डिंग इट अप. सो हमारा भगवान के प्रति क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोल दो. कोई नहीं. आंटी माता जी. बस जब हम उनके अंश हैं, उनका एक कर्म या उनका एक अंश सोल हमारी होती है, तो हमें उनको याद करना और उन्हीं तक जाना. करेक्ट. हम परमात्मा के दास हैं, परमात्मा के अंश हैं. हाँ. उस अंश को बिकॉज हम परमात्मा के अंश हैं, हमारी एक ड्यूटी है. जैसी हमारी एक ड्यूटी है अपने संसारिक रिलेशंस के प्रति, मेरी ड्यूटी है अपने बच्चों के प्रति, वाइफ के प्रति, माता पिता के प्रति, सोसाइटी के प्रति, अपने बॉसेस के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, सबके प्रति हमारी कोई ना कोई एक ड्यूटी रहती है. करेक्ट. सिमिलरली हमारी एक ड्यूटी और जो सेवा है और हमारा एक कर्तव्य है वो भगवान के प्रति भी है. डू यू एग्री? और क्या है वो कर्तव्य? भक्ति और सेवा. भगवान की भक्ति और सेवा करना. सब जो नए लोग आए हैं, प्लीज यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग हियर. यू कैन पार्टिसिपेट. यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन. Full marks for participation, and don't be afraid of, don't be shy of getting wrong answer or anything. Don't worry about it. Okay? So भगवान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के प्रति हमारा सेवा का कर्तव्य है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान की सेवा करना. जैसे कि हम सेवा करते हैं अपने जैसे कि मैंने अभी बोला, अपनी सोसाइटी की रिलेशनशिप्स में. हम जो एक जीव हमेशा ही किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, हमेशा ही किसी ना किसी की सेवा कर रहा है. चाहे वो घर पे बैठा है तो अपने परिवार को लुक आफ्टर कर रहा है, तो वो भी एक सेवा है. ऑफिस जा रहा है, हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दायित्व को निभा रहा है, तो वो भी सेवा है. कुछ और अपना एग्जाम्पल, कुछ भी और एग्जाम्पल्स ले लीजिए. इंसान कोई ना कोई सेवा कर ही रहा है किसी ना किसी के प्रति. ठीक है. सो ऐसे ही बिकॉज हम भगवान के अंश हैं, हमारी भी भगवान के प्रति सेवा भावना का हमारा भगवान के प्रति कर्तव्य है. जीव भगवद गीता में एक वर्स, ब्यूटीफुल वर्स आता है. जीव रूपे ममे वांशो जीव रूपे जीव भूता सनातना. नहीं, नॉट दिस वर्स.
जीव रे स्वरूपे होय नित्य कृष्ण दास, जीव रे स्वरूपे होय नित्य कृष्ण दास. So who are we? We are नित्य कृष्णा's दास, भगवान के दास हैं. हाँ. So और भगवान के दास हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमें भक्ति और भगवान की सेवा करनी है. भगवान अभी लेट्स बिल्ड इट अप. भगवान की भक्ति और सेवा कैसे की जाती है? कौन आंसर करना चाहेगा? सभी स्कॉलर्स आंसर ले. कौन आंसर? यस भगवान को याद करके उनका चैंटिंग करके उनकी सेवा कर सकते हैं. देन आप जैसे यहाँ पे भगवान की कीर्ति करते हैं लोग, संकीर्तन करते हैं, ऐसे कर सकते हैं. यस यस. पूरे तन मन से. तन मन से क्या? पूरे तन मन से श्रद्धा से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को रिझाने के लिए आपको पवित्रता अपने अंदर लानी होगी पहले. वो भावना लानी होगी जिससे भगवान को हम रिझा सकें. अगर वो भावना अपने अंदर है ही नहीं है तो जितनी मर्जी भक्ति कर लो, ईश्वर कभी खुश होगा ही नहीं. भगवान ओके यस यस या दैट्स गुड पॉइंट. भगवान इज नॉट प्लीज्ड विद आवर प्योरिटी. लॉर्ड इज नॉट प्लीज विद आवर कितने प्योर हम हो चुके हैं. हाँ, एक लेट्स टेक एन एग्जांपल. माँ है. हाँ, एक माँ है, उसका एक इन्फेंट बेबी है. वो बेबी माँ की गोदी में पॉटी करता है, शुशु करता है, कुछ भी करता है, गम मचाता है, उल्टी कर देता है कभी कुछ. तो ये नहीं कि वो माँ का प्यार तब तक ही है जब तक वो पूरा बच्चा डेड अप है, पूरा डेंटिंग पेंटिंग करके उसको पॉलिश करके उसको सजा के रखा है, तभी माँ उसको प्यार करती है. माँ उसको प्यार किसी भी हालत में करती है. करेक्ट. जब वो पोटी करके माँ को गंदा कर देता है तब भी करती है, जब वो शुशु कर देता है तब भी कर देती है, चाहे वो उसको नहा धुला के टीका लगा के तैयार सजा के रखा है तब भी प्यार करती है. So similarly, Lord is not pleased by how pure we have become. What purified state or stage we have reached. Lord loves us for our efforts that we put in to become purified. Not destination, not whether how much we have become purified. से glass है, अगर this mark is the ये top, अगर brim तक हम इसको fill कर दें, if that is the mark, symptom of purity, so Lord is not concerned कि कितना full हो गया glass. He's saying कितना आप fill कर रहे हो इसको, कितना how much effort you are putting in, so ठीक है. So we need to demonstrate our sincerity to Lord by performing sadhana bhakti. हाँ, भक्ति जो है ना, हम लोग हमारे काफी लोगों के मन में ऐसा होता है कि भक्ति is a thing of a heart. भक्ति जो है वो बस दिल के अंदर एक बस अपने भावना को जगा लो and that's वही है. नहीं, प्रभुपाद हमारे आचार्य क्या बताते हैं? It's a thing of the heart. You're getting what I'm saying? It's a thing of the heart, but what it is, it's an act of service. It's a physical activity. It's not ये कि मेरे मन में भावना है भगवान के प्रति श्रद्धा की या भगवान के प्रति रिस्पेक्ट की या सेवा की. It's not just that. It is also how much physical effort, tangible, physical, quantifiable effort we are putting in. You get what I mean? कितना हम एक्चुअल एफर्ट डाल रहे हैं. सेवा, आप अपने बच्चों को टेक दिस एग्जांपल, कंपेयर इट टू हम भगवान को जब हम बोलते हैं तो हम हमारे मन में ऐसा होता है कि भावना होनी चाहिए, बस दैट्स इनफ. जब वही अगर हम प्रिंसिपल अप्लाई करें फैमिली में, आप बोलो अपने पति को, हस्बैंड बोले पति को, वाइफ बोले पति के बारे में और पति बोले वाइफ के बारे में एंड बच्चों के बारे में, ऐसे कि मेरे तुम्हारे मन में तुम्हारे लिए भावना है, बहुत बहुत प्यार है, पर कुकिंग मैं नहीं करूंगी तुम्हारे लिए, मैं बच्चे को नहलाऊंगी नहीं, हाँ उसको गंदा पड़. तो what it doesn't mean the thing ना, right? So it's a bhakti needs to be demonstrated by physical activity. And who's saying that? Krishna is saying that, or acharyas are saying that, our acharyas are demonstrating it by their actions. So ये जो मिसकंसेप्शन है कि भक्ति सिर्फ मन का वहम है या मन की भावना है, वहम बोल दो या भावना, जो यहाँ ये सही नहीं है.
ये वो है, बट दैट नीड्स टू ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू फिजिकल एक्शन. सो हमें भगवान की भक्ति के लिए क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटीज करनी है. और कौन सी दोज एक्टिविटीज हैं? There are 9 processes of devotional service, which is what we discussed in the last class as well. How many of you remember those 9 processes of devotional service? ऐसे ही कोई भी, ऐसे ही मतलब you don't have to say Sanskrit word. You can just say what you see around, what people do, devotees do. You can take clues from that. Yes. कीर्तनम. Yes, wonderful. Yes. What else? कीर्तनम का मतलब क्या है? बता दीजिए please. Basically when you're not just chanting alone, you're chanting with other people. Yes. So Kirtan is done 2 ways. एक मिनट. Yes, I'll come to you. कीर्तन का हमारे हमेशा क्या होता है कि एक तो मैंने बोला स्टार्टिंग की क्लास में कि भगवान की कीर्ति गाना. कीर्तन वो है कि सत्संग, संगत के साथ में कीर्तन करना. सत्संग, हाँ, संकीर्तन, संकीर्तन, हाँ, संकीर्तन. सो एक होता है संग, सभी के साथ सामूहिक रूप से गाना. एक होता है जप करना भगवान का, वो भी कीर्तन ही है. वो भी कीर्तन ही है. वो 1-on-1 में आप कीर्तन कर रहे हो, 1-to-1 है, ये सामूहिक है. यू नो, सो कीर्तन 2 तरह से गाया जाता है. सो एक तरीके से जो भक्ति को भगवान की सेवा करने का जो एक तरीका है वो क्या है? कीर्तन. ऐसे 9 तरीके हैं. और क्या है? श्रवण. यस, फैंटास्टिक. यस, भगवान की चैंटिंग करना, तो लिसन करना, दैट्स श्रवणम. यस, यस, थैंक यू. सो माता जी ने बताया दूसरा, हाँ, दूसरा सेकंड वे दैट वी कैन भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम. श्रवणम कीर्तनम, हाँ, भगवान के बारे में सुनना. सो अभी आप जो कर रहे हो ये भी भगवान की सेवा ही कर रहे हो. यही चीज अगर आप घर पे करोगे तो भी भगवान की सेवा ही होगी. आप अपने बर्तन, घर में बर्तन धोते हुए, घर की सफाई करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए अगर ऐसी ही कोई लेक्चर सुनो तो वो भी भगवान की सेवा ही करना है. समझ रहे ना? सो श्रवणम कीर्तनम और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान को याद करना, हाँ, मेडिटेट करना, भगवान को याद करना, हाँ, वो भी भगवान की सेवा है. और विष्णु स्मरणम, देन पाद सेवनम, भगवान की पूजा करना. So like that there are 9, we will not go into all 9. There are 9 processes of devotional service. There are 9 ways a devotional service can be performed. Devotional service का English हिंदी में मतलब क्या है? भक्ति. हाँ, भक्ति मतलब आप अगर इसको देखो, सर्विस मतलब एक्ट, सेवा मतलब एक्टिविटी, नॉट मन से, जैसे कि मैंने बोला, हाँ, मतलब सो मनसा सेवा भी हो सकती है, हाँ, पर माइंड में भी यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द थिंग. मतलब आप अपने मन में इमेजिन कर रहे हो कि मैं मंदिर जा रही हूँ, भगवान का स्वरूप देख रही हूँ, मैं वहां पे भक्तों को सर्व कर रही हूँ. तो वो भी मनसा सेवा है, वो भी सेवा है. और भगवान, जैसे कि मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि चींटी के पग घुंघरू बांधे तो भी भगवान सुनता है, हाँ, तो भी मेरा साहिब सुनता है. एक्चुअली तो इट्स लाइक दैट. सो कि मतलब जो हम मन में सोच रहे हैं या कुछ हल्का फुल्का मरमर भी कर रहे हैं, तब भी मेरा साहिब का मतलब भगवान सुनते हैं. सो अगर हमारी कुछ सिचुएशंस की वजह से अगर हम मंदिर नहीं जा सकते या फिजिकली ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते, अगर हम मनसा सेवा भी करेंगे ना, तब भी वो सेवा काउंट होती है, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग दैट एज परमात्मा इनसाइड. So bhakti is something that needs to be performed tangibly, physically, actively. हाँ, मन का वहम नहीं है. Is this point clear? I'm just repeating myself so that this आपको at least एक टेक अवे पॉइंट तो मिले यहाँ से. हाँ, ठीक है. So अभी आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशेष समय चल रहा है, विशेष मंथ चल रहा है. काफी लोगों को तो ये पता है, शायद नए लोगों को ये पता ना हो या ना हो, आई डोंट नो. यू नो कौन सा मंथ चल रहा है अभी? कार्तिक. जो नए लोग आए हैं उनको मालूम है ये? किसको नहीं मालूम कार्तिक के बारे में? नए पुराने सबको मिला के. फैंटास्टिक. सो कार्तिक मंथ क्या होता है?
कार्तिक मंथ 12 महीनों में एक बार आता है, हाँ, साल में। जैसे इंग्लिश में कैलेंडर मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लाइक दैट। ऐसे हमारे वैष्णव ट्रेडिशन में भी मंथ्स होते हैं, श्रावण, चैत्र, हाँ, वो ऐसे ऐसे, मेरे को हिंदी के याद नहीं है, आई कैन रीड एंड टेल यू, बट लाइक दैट देयर आर various months which do not map to English calendar months dates. So ऐसा नहीं कि श्रावण मंथ पे 1 से 30 तक का होगा, या so different timings, हाँ, based on moon and sun की movement के हिसाब से, so कार्तिक भी एक ऐसा मंथ है जो कि साल में एक बार आता है। इस मंथ की विशेषता ये है कि इस मंथ में भगवान एक बहुत बड़ी सेल फ्लोट करते हैं, जैसे आईपीओ फ्लोट करते हैं ना लोग, हाँ, शेयर्स, हाँ, ऐसे ही भगवान एक बहुत बड़ी सेल फ्लोट करते हैं मार्केट में कि तुम इस मंथ में ये इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, और तुम्हारे को दिन दुगनी रात चौगनी सफलता प्राप्त होगी इसमें। और कहाँ इन्वेस्ट करो, किस चीज, भक्ति की बात कर रहे हैं हम, हाँ, सो कहाँ इन्वेस्ट करो, भक्ति में, भक्ति के प्रोसेसेस में, हाँ, तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हारे को लाभ जो है, जो रिटर्न्स हैं, वो नॉर्मल पीरियड से ज्यादा मिलेंगे। दिस इज व्हाट लॉर्ड इज सेइंग, दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मंथ इज। सो इस महीने में हम बहुत हम अपना भगवान से जो रिश्ता है उसको और डीपर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्ति परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे आचार्य एंड कैसे कर सकते हैं, वो भी हमें जो भी डिवोशनल सर्विस करनी चाहिए ना, वो हमें अपने हिसाब से नहीं करनी चाहिए कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। You can do that, but bhakti should be performed under the guidance of someone. It's not something which should just flow out of your heart कि हाँ मैं ये मतलब the targets or guidance needs to come from seniors, someone seniors. Arjuna did not perform. There are so many in our Vedic scriptures. There are so many examples where the practitioners has practiced devotional service under the guidance of someone. Dhruv Maharaj, Parikshit Maharaj, under the guidance of Narad Muni. So like that, there are so many examples. Prahlad Maharaj, so many examples are there. All of those, they did not perform devotional service on their own by themselves. They performed under the guidance of someone, because when you perform devotional service under the guidance of someone, then they can check and validate, and that person, you need to clearly obviously uska pura, you have to do your due diligence. That person has to be someone that you respect and someone that you can hear, that you can follow the instructions of. It should not be someone जिसके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है, या जिसको आप कैजुअली लेते हो, या whatever. So you find a person in your life who's a Krishna Bhakta, who you respect, and you perform devotional service under their guidance. In the sense, they can guide you, but they can create a customized, they can chalk out a plan, roadmap for you. Like, for example, understanding your situation. You may have young kids, in the arms, or toddlers, or whatever, so they can chalk out a plan for you. In this situation, this is how you can progress. They can share their experience with you. And then, because they may have, more than likely, they may have gone through the situation that you are going through now. So they are a few years ahead of you. So they can guide you those things, So bhakti should not be performed in isolation. Do you agree? Yes. So please take advantage of this program. There's a wonderful devotee you have, Vishnu Priyeshwar Prabhu and the other facilitators. You can take guidance from them. Don't perform. Don't form your own ideas about कि मैं ये ऐसे करूँगा. Always validate things. You can bounce off things with your mentors. Always have a mentor. In devotional service also always have a mentor. Just like corporate life mein, we are encouraged, not everyone has mentors, but in corporate life also, you are encouraged to have a mentor.
Similarly, यहाँ पे it's not encouraged, it's more than encouragement. It's actually required. It's required, you know, strongly encouraged, you know, as they say. So, but choose that person carefully, you know, choose that person carefully. So इस मंथ में जैसा कि मैंने बोला कि इस मंथ में एक तरह से सेल, भगवान सेल प्लॉट करते हैं. तो हम क्या क्या कर सकते हैं इस मंथ में? सबसे पहले तो देयर आर 8 prayers which our previous acharyas or Satyavrata Muni, there is a ancient or personality, a sage, you know, Satyavrata Muni. He actually, I wanted to speak about Damodar Leela, but since that there are quite a few new people, I won't go in detail. Let me see. So इस पर्टिकुलर मंथ में एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत सुंदर, अद्भुत लीला हुई थी. हाँ, एक वो क्या थी? दिवाली वाले दिन, दिवाली के दिन मदर यशोदा. So इससे पहले the background to this is मदर यशोदा finds out कि बाल गोपाल, अपना गोपाल, लिटिल गोपाल, कृष्णा, बेबी कृष्णा, he steals, वो लोगों के घरों पे बटर चुराने जाते हैं. हाँ, चुराते हैं, पकड़े जाते हैं. ये वो गोपियां कंप्लेन करती हैं. तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये स्टोरी. हाँ, तो मदर यशोदा के मन में एक इच्छा डेवलप होती है कि आज दिवाली का दिन है, मैं अपने हाथों से गोपाल के लिए और कृष्ण के लिए बटर बनाती हूँ अपने हाथों से, ताकि उनको बाहर जाके चुराने की जरूरत ना पड़े, मैं घर पे ही फीड करती हूँ ना. तो मदर यशोदा उनके पास, नंद बाबा मदर यशोदा के पास 9 लाख काउस होती हैं. हाँ, 9 लाख गायें. 9 लाख गायों के, आई डोंट नो द मैथ्स बेसिकली. सो क्या है कि 9 लाख गायों का मिल्क is fed into 9 lakh गायों में से कुछ selective handful of cows are identified. Let's say 100. हाँ पे तारीख, I don't know the number. हाँ, let's say 100. उन 100 cows को separate रख के बाकी जो 8 lakhs whatever जो भी नंबर आया, हाँ, उस नंबर उस cows का मिल्क पिलाया जाता है इन 100 cows को. हाँ, उसमें से देन फर्दर कुछ और सेलेक्टिव और आइडेंटिफाई करके कुछ सेलेक्टेड काउस आइडेंटिफाई की जाती हैं. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू. उन काउस का मिल्क, हाँ, पद्मगंधा काउस का, गौओं का मिल्क को कलेक्ट करके मदर यशोदा दही बनाती है. उस दही से एक पॉट में मदर यशोदा उसको उससे क्या बोलते हैं, मोटर, क्या बोलते हैं उसको, मथानी. हाँ, मथानी, पंजाबी में मथानी बोलते हैं, मथनी, दही बिलोना. हाँ, ठीक है. उसको वो करती हैं, चर्न करती हैं. हाँ, कि दही से मक्खन बनाना. हाँ, हम लोग मक्खन कैसे बनाते हैं, मलाई से, इंडिया. हाँ, वो दही से मक्खन बना रही थी. हाँ, सो बनाते बनाते क्या करती हैं मदर यशोदा, बनाते यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेसन आता है. हाँ, जैसे ही वो बना रही होती हैं, तो एज शी इज मेकिंग, एज वो बिलो कर रही हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान का स्मरण चल रहा है. हाँ, भगवान की लीलाओं का स्मरण चल रहा है साथ साथ. हाँ, और वो अपने हाथों से मन में स्मरण चल रहा है. हाँ, और अपने वाणी से भगवान की लीला को गा रही हैं. हाँ, मतलब प्यार से गीत गा रही हैं उन लीलाओं को स्मरण करके. हाँ, और फिजिकली हाथों से चर्न कर रही हैं. सो बॉडी माइंड वर्ड्स, DMW. हाँ, अब उसको यूज कर रही हैं. हाँ, तो जब हम ऐसा करते तो हमारे आचार्य बताते हैं कि दिस इज डिवोशनल सर्विस. दे आर गिविंग एग्जाम्पल. जब हम अपनी कोई भी अपने घर में हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं तो while we are doing this we can also do the same what Mother Yashoda did. हाँ, करेक्ट. It just वो कर सकते हैं. It just requires little effort because we do not have practice. क्योंकि हमने कभी किया नहीं है ना, हमारे को आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है.
इसलिए हमें हार्डर लगता है। पर आप किसी भी हैबिट को बनाने के, किसी भी एक्टिविटी को हैबिट बनाने के लिए ना, आप उसको 7 दिन करोगे रेगुलरली, तो इट विल बिकम हैबिट। So we can also do what Mother Yashoda did. So as she was churning, उनके हाथ वो उससे एक पर्टिकुलर टाइप की आवाज आ रही थी रोड से, एंड उनकी बैंगल्स जो थी वो छन छन कर रही थी, वो टक टक कर रहा था, वो भी एक तरह से कीर्तन ध्वनि एंड वाणी से वो उनकी गुणगान गा रही थी भगवान के लीला को स्मरण करके। तो इट वाज फॉर्मिंग बिकमिंग अ कीर्तन, यू नो, व्हाट इज कीर्तन? रिमेंबरिंग लॉर्ड, भगवान की कीर्ति गाना, हाँ, so that is कीर्तन। So it becoming a कीर्तन, listening to कीर्तन, Bal Gopal Krishna wakes up. He wakes up and he comes to Mother Yashoda. So every little episode, so मैं हर episode में there is a learning, हाँ, पहली learning मैंने आपको बताई, अभी now there is a next learning coming. So भगवान आते हैं, गोपाल जी और little Krishna, he comes and क्या करते हैं, आते ही क्या करते हैं, he could have done anything, हाँ, could have कुछ भी, किसी भी तरीके कुछ और, but what he chose to do, वो आते ही वो रॉड को पकड़ लेते हैं ऐसे, हाँ, ऐसे, हाँ, कि वो हमारे आचार्य बताते हैं कि रॉड को ही क्यों पकड़ा, हाँ, रॉड को ही क्यों पकड़ा, अपनी माँ का आके साड़ी का पल्लू क्यों नहीं पकड़ लिया, या माँ को ऐसे वो हग क्यों नहीं कर लिया, या कुछ और क्यों नहीं कर लिया। तो हमारे आचार्य ऐसे बोलते हैं, हाँ, अपनी कमेंट्रीज में, हाँ, वो कहते हैं कि भगवान ने जड़ को, सीधा जड़ को ही पकड़ लिया, ताकि मदर यशोदा की अगर वो पल्लू को पकड़ा होता तो माँ बोलती थोड़ा साइड पे हो जाइए, मैं को कर फिर भी वो शी कुड हैव कंटिन्यूड, बिकॉज पल्लू को पकड़ा, हाथ को थोड़ी ना पकड़ा। तो उसको भगवान ने उसको जड़ को ही पकड़ लिया, एंड देन मदर यशोदा हैड टू स्टॉप, यू नो। एंड पकड़ने का व्हाट डज इट सिग्निफाइज? सिग्निफाइज कि तुम ये जो भी ताम झाम जो भी कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? व्हाई वाज शी डूइंग व्हाट दैट एक्टिविटी? कृष्ण, भगवान के लिए। तो बोले तुम मेरे लिए ही कर रही हो, तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूं, तो डू व्हाट आई वांट, डू व्हाट आई वांट, व्हिच इज फीड मी, आई एम हंग्री। हाँ, so he says कि I'm hungry, you know, whatever, जैसे भी अपना हिंदी में whatever, you know, भूख लगी है, whatever, you know. So Mother Yashoda picks him in her lap and starts feeding. She starts feeding, and again there are lessons, you know. Actually before that, so उससे क्या, भोक्ता राम यज्ञनस् तपसम, कि सभी यज्ञों का जो भोक्ता है वो मैं हूँ। ये भी एक तरह से एक यज्ञ ही था, मतलब इन द सेंस लाइक शी वाज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। सो भगवान के कह रहे हैं कि मैं इसका बेनिफिशियरी हूं, सो स्टॉप दिस एक्टिविटी एंड डू व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, व्हिच इज फीड मी। सो मदर यशोदा पिक्स हिम इन हर लैप एंड स्टार्ट्स फीडिंग, एंड देन एज शी इज फीडिंग हिम, दे बोथ आर वाचिंग ईच अदर, यू नो, द लिटिल गोपाल इज वाचिंग मदर एंड मदर इज वाचिंग गोपाल, हाँ, कृष्णा। एंड उनके बीच में जो वात्सल्य रस है, वो जैसे जैसे वो देख रहे हैं एक दूसरे को, वैसे वैसे वो वात्सल्य रस बढ़ता जा रहा है, हाँ। और मदर यशोदा इज की बॉडी से, ऑफ कोर्स, यू नो, शी इज फीडिंग मिल्क एंड गोपाल इज ड्रिंकिंग, कीप्स ऑन ड्रिंकिंग। एंड एज इट्स हैपनिंग, फ्यू मोमेंट्स लेटर क्या होता है कि, एंड अगेन आवर आचार्य हैज एक्सप्लेन कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट is every object is conscious. So वहां पे जो पत्ता है या पत्थर है या माउंटेन्स है या लेक्स है या बर्ड्स है, everything is conscious, you know. So जो वहां पे मिल्क है, so मतलब जैसे वो बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम एज एन एग्जाम्पल, हाँ, जैसे हम चावल बनाते हैं घर पे, तो हमें उठ के देखना पड़ता है ना कि चावल कितने कुक हुए कि नहीं हुए, हम विसल की वेट करते हैं, या जो भी है, हमें कुछ सिग्नल की वेट करते हैं, करेक्ट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, वहां पे चावल कुक हो रहे हैं तो चावल से ही पूछा जाएगा कि चावल कुक हो गए, वो चावल रहेगा नहीं, थोड़ी देर वेट करो, अभी थोड़ा टाइम है, यू नो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, यू नो, मतलब जस्ट एन एग्जांपल टू डेमोंस्ट्रेट दैट एवरीथिंग इज कॉन्शियस, यू नो। So,
सो उसके फिर हाँ तो उनके बीच में मदर और गोपाल के बीच में वात्सल्य रस बढ़ता जा रहा है। एंड देन उसको देख के क्या होता है, जो एक पॉट पे ना मदर यशोदा ने बॉइलिंग मिल्क रखा होता है, मिल्क बॉईल करने के लिए। उसको देख के उन दोनों के वात्सल्य रस को बढ़ता देख के वो जो पॉट में मिल्क है वो जैसे कि मैंने बोला हर एवरीथिंग इज कॉन्शियस। पॉट में जो मिल्क है वो उबलने लगता है और उसके पीछे हमारे उबलने लगता है और वो उससे गिर जाता है बाहर। हाँ, तो उसके पीछे हमारे आचार्य रीजन बताते हैं। और ये जो रीजंस है ना, ये ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए हमारे आचार्य की मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये आर आचार्यज हैव एक्सपीरियंस दीज। जैसे आप तो आंखों से सुन रहे हो ना, कानों और आंखों से सुन रहे हो ना, मतलब हाँ, और विजुलाइज कर रहे हो, मतलब इमेजिन कर रहे हो, एज आई एम होपफुली इमेजिन कर रहे हो। पर दोज आर आचार्यज हैव सीन इट लाइव, प्रत्यक्ष प्रमाण, उन्होंने देखा है। जैसे ये गोपाल बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग बैठे, ऐसे ये लीला होते हुए देखी है उन्होंने, यू नो। सो देन हेंस दे कैन कमेंट, हेंस दे कैन एक्सप्लेन द मीनिंग बिहाइंड इट, you know, the deeper principles, the meanings behind it, you know. So क्या इसका मीनिंग क्या बताते हैं हमारे आचार्य कि मिल्क, दूध ने ये सोचा कि मेरा अस्तित्व था भगवान को सेटिस्फाई करना। मेरे को पीकर भगवान अपनी थर्स्ट या हंगर को दूर करते। दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ माय लाइफ, और मेरे होने की का मकसद। हाँ, वो सोच के वो बोलता है कि इस जीवन का क्या फायदा, लेट मी जस्ट बॉइल इट डाउन, यू नो। हाँ, वो हाँ, ये क्योंकि वो भगवान तो मदर यशोदा का दूध पी के सेटिस्फाई हो जाएंगे, एंड दैट्स इट, यू नो, व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ मी। सो वो सोच के इट स्पिल्स आउट। एंड क्या होता है, ये देखकर मदर यशोदा decides to leave the child, the Gopal aside, and then 1 मिनट के लिए कि मैं गैस ऑफ करके आ रहा हूँ, या चूल्हा बंद करके आ रहा हूँ, या पॉट को नीचे रख दूँ, whatever। हाँ, वो करने जाती हैं तो क्या होता है, और गोपाल नटखट, you know, when he wants attention, he wants full attention. He doesn't want कि छोटा मोटा मेरे को थोड़ी अटेंशन मेरे को दो, और फिर तुम थोड़ा ये भी कर लो, वो कर लो, ये कर लो, फुल अटेंशन, यू नो। कृष्णा वांट्स फुल अटेंशन। सो इसीलिए तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ये भी बोलते हैं, मन मना मत भक्तो, मुझे अपना मन बुद्धि दो, थिंक ऑफ मी, रिमेंबर मी, परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। सो दैट्स व्हाई, यू नो, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, यू नो। सो ही डजंट लाइक दैट। वो उनको लीला है, यू नो, गुस्सा आ जाता है, यू नो, व्हाटएवर, यू नो, ही डेमोन्स्ट्रेट्स लिटिल एंगर, यू नो। तो क्या होता है कि उनको ही देन गोज इनटू अ राफ्टर्स, इनटू अ रूम, स्टोरेज रूम, जहां पे बटर के वो पड़े होते हैं, स्टोरेज पॉट्स। सो वो जाते हैं और वो उसको तोड़ देते हैं, एक मटके को। हाँ, मटके को तोड़ते हैं, उसमें भी मटके को तोड़ते हैं, ऊपर नहीं तोड़ते उसको। ऊपर मटका ऐसे शेप में होता है ना, हाँ, ऊपर से नहीं तोड़ते उसको, नीचे से तोड़ते हैं। उसका भी आचार्य रीजन बताते हैं कि क्यों नीचे से, कि ऊपर से तोड़ता तो वो गिरता नहीं। अब ऑफ कोर्स दिस यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन मे बी थिंक कि ये तो लॉजिकली आंसर है यार, इसमें क्या व्हाट्स अ बिग डील, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड, कि ऊपर से और नीचे से तोड़ा ताकि वो पूरा ही खिंड जाए। हां, जैसे मक्खन निकल आए ना, हां, वो व्हाटएवर। हां, तो नीचे से तोड़ा, वो पूरा वो सब जगह फैल गया। हाँ, फैल गया। तो फिर उसके बाद उनको डर लगा कि यार ये तो नुकसान हो गया, अब तो मार पड़ेगी, यू नो। एंड देन ही वांट्स टू रन अवे फ्रॉम देयर। एंड रन, कहाँ रन करें, क्योंकि वो तो फैल गया है सब, और वो उड़ जाएंगे तो उनके पैर छप जाएंगे, मतलब पैरों पे मक्खन आ जाएगा, तो फुटप्रिंट्स जहां जहां वो भागेंगे तो मदर यशोदा को पता लग जाएगा। तो एज अ क्यूट लिटिल नटखट बाल गोपाल, व्हाट ही डज इज ही ट्राइज टू जंप ओवर द थिंग। जैसे वो कहीं, हम जस्ट इमेजिन ना कि वो यहाँ पे स्प्रेड हो गया, तो ही ट्राइज टू, बट ही इज सो लिटिल, ही इज ओनली 2.5 years old। हाँ,
2.5 year old, and वो जब अपनी तरफ से जंप करते हैं और वो पैर फिर भी आ जाता है उस पे, पैर उस पे मतलब मक्खन लग जाता है पैरों पे. और आचार्य नाउ से व्हाट डू दे से कि सेम लॉर्ड इन हिज इनकारनेशन एज वामन देव, 3 पग में उन्होंने, 2 पग में इनफैक्ट 2 पैरों में पूरा मटेरियल वर्ल्ड, फर्स्ट उसमें मटेरियल वर्ल्ड 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, एंड सेकंड उसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड नाप लिया था 2 पैरों में. और वही सेम द सोर्स ऑफ वामन देव, who is Krishna, he could not just cross a little puddle of butter, little उसका वो थोड़ा सा जो फैला था उसको भी he could not cross. This demonstrates the sweetness of Krishna's pastime. That sweetness is not there in any other avatars or incarnation. आप नरसिम्हा देव भगवान को देख लो, तो फाड़ दिया उन्होंने हिरण्यकशिपु को, तो उसमें स्वीटनेस कहाँ है? एक तरह से देखो उसमें तो आतंक है. आप वराह देव को देख लो, उसमें क्या किया उन्होंने, अपने टस्क पे जब नीचे जाके हिरण्याक्ष को मारा, अपनी टस्क पे धरती को लेकर आए, वो कितना ही वो सो उत्तेजित, एंग्री. The same thing, so there is no sweetness. So when you see वराहदेव, आपके मन में क्या आएगा? आदर भाव और मतलब ओ एंड रेवरेंस आएगा. कृष्णा के साथ जो अगर आप भगवान कृष्ण को देखोगे तो आपके मन में क्या आएगा? वात्सल्य भाव आएगा, फ्रेंडशिप, वात्सल्य, सखा, उस तरह का भाव आएगा. आपके मन में वो टेरर नहीं आएगा, वो डर नहीं आएगा, जो कि कुछ अदर इनकारनेशंस में आता है. So that is the sweetness of Krishna's pastimes. Krishna's pastimes are very, very sweet. That's why our lineage. So there is nothing wrong in worshipping any other incarnation. Just that Gaudiya Madhva Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, in which Srila Prabhupada comes, in which Sri Chaitanya Mahaprabhu comes, we are following that lineage, which is to worship Lord Krishna in the and worship his childhood pastimes. The sweetness. We are more attracted to the sweetness of the Lord. The madhurya rasya. हम उस mood से attracted हैं. इसीलिए we are in this lineage. But there is nothing wrong in somebody worshipping other lineages where other Krishna's incarnations are there, where the mood may be little different. Just that we are following this. You get my point? So क्या होता है फिर? वो पैर पे मक्खन छपता है, भगवान भागते हैं. भगवान जैसे भागते हैं, मदर यशोदा को पता लगता है कि एक्चुअली उससे पहले क्या होता है कि उससे पहले वो मक्खन खुद भी खाते हैं और मंकीज को भी खिलाते हैं. मंकीज फुल हो जाते हैं, देन मंकीज स्टॉप ईटिंग एंड देन दे से व्हाट्स द यूज ऑफ दिस बटर. मंकीज भी नहीं खाते, मंकीज तो ही रन्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस. एंड मदर यशोदा को पता, ही रन्स आउट टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द हाउस, एंड देन मदर यशोदा देखती हैं एंड शी ट्राइज टू कैच होल्ड ऑफ हिम with the stick. उनके पास स्टिक होती है, एंड वो स्टिक को देख के भगवान डर के मारे भागते हैं दरवाजे के गेट की तरफ, मेन गेट की तरफ. एंड जैसे वो हमारे आचार्य जो हम 8 वर्सेस हैं जो हम गाएंगे थोड़ी देर में, जो कि सत्यव्रता मुनि ने प्रत्यक्ष प्रमाण विजुअलाइज किए हैं, एंड he has sung, he has watched, he has seen this leela happening, and then he's written these verses remembering that leela and his own prayerful mood. So this उन्होंने जो 8 verses लिखे हैं उसमें 1.5 वर्स में ही ये पूरी लीला खत्म हो जाती है. पहले के वर्स की सेकंड 2 लाइनें और दूसरे वर्स का 4 लाइनें.
वो जो 6 लाइनों में ही पूरी लीला एक्चुअली खत्म हो जाती है. हाँ, बट देयर आर 8 वर्सेस मतलब ईच वर्सेस 4 लाइन्स, मतलब 8 times 4 32 लाइन्स. हाँ, सो 32 में से 6 गई, कितनी बची? 26 लाइन्स में वो बाकी चीजें बोलते हैं. वो अपना मूड व्यक्त करते हैं कि मैं अपना मूड व्यक्त करते हैं, अपनी प्रेयर्स व्यक्त करते हैं, और यू नो एंड सो फोर्थ, व्हिच आई कुड हैव शेयर्ड विद यू. दैट वाज माय प्लान, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर. सो डेढ़ लाइन में 6 लाइन्स में लीला व्यक्त हो जाती है, और बाकी लाइन्स में, एज आई सेड, he describes his own prayers, he makes his own prayers and few other things. So हाँ, तो where was I? So कि वो मदर यशोदा उनके पीछे स्टिक लेकर भागती हैं, और जैसे वो भागती हैं, कृष्णा is crying रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम. हाँ, रुदंतम मतलब आंखों से आंसू निकल रहे हैं. हाँ, आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आतंक के मारे. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कांप रहे हैं, ट्रेम्बल, आतंक के मारे. हाँ, वो कृष्ण भगवान जो कि सारी सृष्टि के सोर्स हैं और क्रिएटर हैं. एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिम. ही इज ट्रेम्बलिंग एंड रनिंग इन फियर ऑफ मदर यशोदास स्टिक. स्टिक भी कोई ऐसी लठ थोड़ी ना होगा. हाँ, पतली सी छोटी सी डंडी होगी कोई, यू नो, स्टिक के डर के मारे, यू नो, दैट लॉर्ड इज रनिंग थ्रू द हाउस towards the front of the house. So can you imagine the sweetness here? That sweetness you can't there is no, you know, Varahadev, Narsimhadev, you know, you can't expect that, you know. So even Lord Ram did not demonstrate that kind of sweetness in his leelas, you know. Lord Ram demonstrated, but those were different qualities. Those were different attributes. Krishna demonstrated sweetness. Sweetness. Krishna is demonstrated full of sweetness. Other incarnation demonstrated different aspects of godhood. You know. So and then उसके बाद रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम परम भोजा युग्मेना आतंक नेत्रम. सो आंखों में टेरर था. हाँ, और मुहुश, उसके बाद मुहुश्वास कंपा त्रिएक का खंड था. हाँ, क्या था कि उनके, तो इसमें these I could have probably shared, maybe next time I'll try to share. Each line has got, each word has got such a deeper meaning. हाँ, कंठा, तो उसमें क्या था कि 3 भगवान के ब्यूटी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको इस लीला को याद करके कि भगवान के गले में 3 लाइनें हैं. जैसे वो हमारे, आपने देखा ना बच्चों के, तो चबी बच्चों के या होता है 3 लाइनें, ऐसे लाइनें पड़ती हैं. हाँ, तो भगवान के वो ऐसे याद कर रहे हैं. हाँ, कि उनके कैसे वो है. एंड मुहुश्वास कंपा. हाँ, मुहुश्वास कंपा मतलब कि उनके जो श्वास, बिकॉज वो भाग रहे हैं, डर भी है, टेरर है. हाँ, माँ से डर है. हाँ, और भाग रहे हैं, तो उनकी सांस चढ़ जाती है. हाँ, मुहुश्वास कंपा. हाँ, उसमें उनकी सांस चढ़ जाती है, और सांस चढ़ती है तो अगेन आवर आचार्य has explained every word has, they explain the deeper meaning. कृष्णा भगवान के, कृष्णा is the source of everything, the top of the supply chain. top of the supply chain. उनसे सबसे पहले जो आते हैं वो है, कौन आते हैं, किसको पता है? What is the first incarnation of Krishna? बलराम जी. बलराम जी आते हैं पहले. बलराम से आते हैं चतुर्विह, संकर्षण, प्रद्युम्ना, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्ना. वासुदेव, बलराम जी. हाँ, याद रखना, मैं कोशिश करो याद रखने की, बिकॉज हमें पता होना चाहिए ना ये सब चीजें. ये भी भक्ति, हमारी जब इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं, मेमोरी, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ भक्ति. कृष्ण से सबसे पहले बलराम जी आते हैं. हाँ, बलराम जी पहले. बलराम जी से 4 पर्सनैलिटीज आती हैं. Who are those? वासुदेव, सॉरी
बलराम जी, कृष्ण से सबसे पहले आते हैं बलराम जी। हाँ, बलराम जी से कौन 4 पर्सनैलिटीज आती हैं? कौन सी हैं वो? वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण एंड प्रद्युम्न। वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न। भी एक एक बोलिए, सब इकट्ठे बोलिए। वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न। एक बार वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न। बॉबी जी अभी चारों बोलो। नहीं, चीटिंग नहीं। वासुदेव, फोन फ्रेंड, संकर्षण, प्रद्युम्न। ये तो है फर्स्ट चतुर्विहा, फर्स्ट लेयर। उसके बाद इनसे सेम 4 अगेन मैनिफेस्ट, सेम 4। वासुदेव, आई गेट ओवर एक्साइटेड। से यही चारों फिर दोबारा मैनिफेस्ट होते हैं उन्हीं चारों से। दैट्स द सेकंड लेयर, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर। हाँ, उनको जो सेकंड टीयर उनको बोलते हैं महाविष्णु, वासुदेव, महासंकर्षण, महाप्रद्युम्न, लाइक दैट। हाँ, सो उसमें जो नारायण वो हैं महाविष्णु। सो कृष्णा जिनकी एक्सपेंशन बलराम, उनकी एक्सपेंशन चतुर्विहा, उनकी एक्सपेंशन में देन महाविष्णु आते हैं। कृष्णा's एक्सपेंशन थर्ड लेयर पे महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु जब ब्रीद आउट करते हैं, महाविष्णु के स्किन से, पोर्स से, जो पोर्स होते हैं आपको पता होगा पोर्स का, हाँ, वहां से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस निकलते हैं। उसमें से एक यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, एक यूनिवर्स में। उस एक यूनिवर्स में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। उस 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में मिडल में हम हैं। उस मिडल में अर्थली प्लैनेट अर्थ है। उस अर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, पॉइंट कुक में हम रह रहे हैं। तो वो एक ही डिस्क का स्पिंडल है। मतलब एक डिस्क, आपने सीडीज का स्पिंडल देखा होगा ना, जिसमें 100 सीडीज का स्टैक होता है, बीच में वो होता है डंडी, उसमें वो स्पिंडल होते हैं। ऐसे आप समझो, स्पिंडल के अंदर एक यूनिवर्स में ऐसा वो स्पिंडल होगा, उसमें बीच में जम्बो द्वीप होता है, वो जो स्टिक में वो है, उसके अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। उसमें मिडल में अर्थली प्लैनेट है। अर्थली प्लैनेट के अंदर अर्थ है। अर्थली प्लैनेट और अर्थ अलग चीजें हैं। हाँ, तो उसमें अर्थ है, अर्थ के अंदर उससे, तो मतलब वो एक है। वो जो स्पिंडल मैंने बताया, वो एक यूनिवर्स है। ऐसे उनके स्किन से every millisecond so many universes are coming out and galaxies are formed and so forth. वो कौन है? अब let's take it back where we were. वो कृष्णा जिनके इनकारनेशन के फर्स्ट इनकारनेशन की एक्सपेंशन देन महाविष्णु है। उनकी स्किन से वो निकल रहे हैं, पोर्स से वो निकल रहे हैं, और जब वो ब्रीथ इन करते हैं तो वही यूनिवर्सेस वापस उनकी बॉडी में जाते हैं। जैसे एक मंडेन एग्जांपल मैं देता हूँ। फुहारा होता है ना, फुहारे में पानी ऊपर जाता है, वही पानी नीचे आता है, और वही पानी फिर ऊपर जाता है, वही नीचे आता है। तो मतलब यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस एग्जांपल इफ यू वांट टू, यू नो। सो वो कृष्णा जिनकी एक्सपेंशन से यूनिवर्सेस, जब वो ब्रीथ इन करते हैं तो यूनिवर्सेस इनहाइलेट होते हैं। वही कृष्णा की ब्रीथ हैवी हो गई है, उनको सांस चढ़ गई है, थोड़ा सा रन करने के, अब रन करके अपने घर के अंदर से बाहर आने के लिए डर के मारे उनकी ब्रीथ हैवी हो गई है। This is the sweetness again our acharyas are highlighting, you know. So ये है, so the I could go more on and on, but I think we'll end soon. So जो कृष्णा जो है ना, जब भगवान कृष्ण इस धरती पे आते हैं तो अपनी गॉडहुड, let me start again. The difference between Krishna and the other incarnation
भगवान कृष्ण और दूसरे इनकारनेशन के अंदर डिफरेंस पता क्या है? जब राम भगवान आए तो वो अपनी गॉडहुड नहीं भूल के आए, उन्होंने सबको बोला कि मैं भगवान हूं। हाँ, जब लॉर्ड वराह देव आए, वामन देव आए, सबने अपनी they didn't forget their godhood. Krishna demonstrated in this pastime also, you know, जैसे जो मैंने एक्सप्लेन किया, आंखों से वो आंसू निकलना, सांस चढ़ जाना, you know, मदर दूध पीना, the person he is that Krishna जिनको millions and millions of Lakshmis are ready to serve, you know, and he's Atma Rama. He doesn't उनका स्टमक खाना खाने से नहीं फील होता, he's always satisfied in himself, you know. So वो कृष्णा मदर यशोदा के दूध के लिए भूखे थे, you know. So when Krishna comes, the point that I'm trying to make is when Krishna comes to earth or this material world, then he forgets, then he takes part in these sweet leelas, and he wants the devotees to forget his godhood. You understand? Because godhood अगर forget नहीं करेंगे तो क्या होगा? Awe and reverence आएगी. Then you can't play with Krishna. Then you can't feed समोसे के अंदर वो समोसा को आलू निकाल के फूल डाल के और भगवान को खिलाना, जो कि गोपास करते थे ऐसे, you know. Then you can't do that. Can you do that too with Hiranyakashipu? Or not you? Anyone do that? Can anyone dare to do that? You know. So that is the uniqueness of Lord Krishna's pastimes, and those are the pastimes, or those that Krishna is who we are attracted towards. So I'll repeat: there is nothing wrong in worshipping Lord Ram. There is nothing wrong in worshipping Varahadev, Vamandev, or Parshuram, or any other incarnation. There is nothing wrong. The only difference is mood is different. Mood is different. So with that, I'll end here. So this month, again, as I said, try and do more and more devotional services. Devotional services is something which has to be performed physically. It's अपनी बॉडी को यूज करके कुछ ना कुछ सेवाएं करिए, और सेवाएं नहीं तो माला जप करिए, वो भी सेवा ही है. आप फिजिकली यूज कर रहे हैं ना अपनी बॉडी, तो वो भी सेवा ही है. शास्त्र का अध्ययन करिए, मंदिर आइए, मंदिर में सेवाएं कीजिए. सेवाएं नहीं भी करनी, मंदिर आना भी सेवा है एक तरह से, क्योंकि यू आर मेकिंग एन एफर्ट, राइट, यू नो, टू कम देयर. सो आइए, भगवान को दिया दिखाइए सुबह शाम घर पे, और नहीं तो घर पे घर पे दिखाओगे तो एटलीस्ट है दामोदर की फोटो, नहीं तो किसको दिखा रहे हो, यू नो. सो लॉर्ड दामोदर की फोटो, एंड देन भगवान को दिया दिखाओ. एंड जब हम दिया दिखाते हैं तो उससे हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको भी तृप्ति मिलती है. उनको भी जब आप दिया दिखाने के बाद, देन यू कैन ऑफर इट टू देम, लाइक, यू नो, एंड देन दे विल, जहां पे भी वो हैं, उनको उसका क्रेडिट मिलता है. एंड देन जब उनको क्रेडिट मिलता है तो दे शावर ब्लेसिंग्स ऑन यू. जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? दो चीजों से होते हैं. एक तो होते हैं हमारे खुद के कर्म, दूसरा हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, वो ऊपर बैठे, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, you know, because they are not satisfied, they may, and they are not happy, so you know, that's why also, you know, bad things can happen to us. So पितृदान करना बहुत important है. We all should do it, you know, we all should do it. पितृदान, or that should not be an activity that we should do once a year. वो हमेशा ही करो ना. क्या पितरों को हम तो हर रोज खाते हैं ना, तो उनको भी तो हर रोज यू कैन डू समथिंग, यू नो. जब भगवान को प्रे करते हो तो उनको भी, उनके लिए भी प्रे करो, यू नो. भगवान का भोजन जो ऑफर करते हो तो उनको भी बस ऐसे ही सिंबॉलिक रूप में दिखा दो आप, यू नो. सो सो द पॉइंट कमिंग बैक हियर इज कि इस ऐसे खुद को भी लाभ होता है, पितरों को भी लाभ होता है. सो मंदिर आइए, माला कीजिए, शास्त्र पढ़िए, इस तरह के प्रोग्राम घर पे आयोजन ऑर्गेनाइज करिए,
और क्या बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, यू नो. टेक अ बाथ ऑफ क्लीनलीनेस, यू नो, सुबह जल्दी उठिए. सबसे बड़ी बात है कि डू दोज एक्टिविटीज व्हिच यू नॉर्मली वुड नॉट डू ड्यूरिंग दिस मंथ, यू नो. तो वो उस तरह की एक्टिविटीज कीजिए. सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके जप कीजिए भगवान का. We should do. Those who are not doing, they should do, and those who are doing, they should double it up. It's a simple process. You know. हाँ जी. स्नान भी एक्चुअली तो पता है क्या, जो ब्राह्मण होते हैं ना वो तो नंबर 2 के बाद भी स्नान करते हैं. और क्या, बिल्कुल ऐसा करिए. नहीं, बहुत अच्छा है, करिए ना. और जब हम स्नान करते हैं ना, तो हम अगर मैं ऐसे ही एक लेक्चर में सुना था, जब हम स्नान करते हैं तो तब हम अगर रिवर्स को याद, गंगा यमुना को याद करें, तो वो जो आप स्नान कर रहे हो ना, वो गंगा यमुना ही का एज गुड एज टेकिंग बाथ इन गंगा, अगर हम याद कर रहे हैं तो. भक्ति इज समथिंग, अगर आप मन में भी ठान लो ना कि कल मेरे को मंदिर जाना है, तो आपको उसका फल मिल जाएगा. इच्छा तो डेवलप करो एटलीस्ट. हमारे मन में हम लोग इच्छा ही नहीं डेवलप करते. इच्छा डेवलप करोगे तो साधन अपने आप लॉर्ड प्रोवाइड करेंगे. वो बोलते हैं ना कि माँ जब बुलाएगी तब हम चले जाएंगे. बोलते हैं ना वैष्णो देवी, यू नो, कि माँ का बुलावा आएगा तो आप पहुंच जाएंगे, यू नो. तो माँ जब बुलाएगी तो हम पहुंच जाएंगे. तो माँ तो तब बुलाएगी ना जब इच्छा करोगे. सिमिलरली यहाँ पे भी इच्छा करोगे तो भगवान फैसिलिटेट भी करेंगे. डेवलप इच्छा, एंड दैट डेवलपिंग दैट इच्छा इटसेल्फ इज लॉर्ड एक्सेप्ट दैट आल्सो. एज आई सेड, जहां से मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, लॉर्ड डजंट सी व्हाट यू डू, लॉर्ड सीज व्हाट यू वांट टू डू फॉर हिम और हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट इन, यू नो. ठीक है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. I'm sorry, I just went either उधर सब जगह, but Good session. Very nice session. Questions. Okay. Yeah, any questions? If there's any questions, you can ask me. I don't know whether I can answer, but we'll try. Mike. Let's go to Mike. आप तो वही नोट कर रहे हो ना. हरे कृष्ण. प्रभु, जो प्रैक्टिसेस हैं, ये सब जो भी प्रैक्टिसेस करनी है, और जो भाव है, ये एक तरह की चिकन है, एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है कि अगर भाव नहीं होगा तो प्रैक्टिसेस करोगे तो उसको क्या करोगे, प्रैक्टिसेस नहीं करोगे तो भाव नहीं आएगा. क्या किस तरह से करेंगे, दोनों चीज. अपना ही आंसर दे दिया. आपने एक तरह से पार्शली अपनी खुद ही आंसर कर दिया. It's something that, you know, प्रभुपाद से ऐसे कभी पूछा गया कि मेरा तो माला करने का मन नहीं करता, मैं क्या करूं. तो वो कहता जी, chant and by chanting your the desire will develop. And it doesn't matter कि जब हम माला करते हैं हमारा मन भटकता है, या मन में शॉपिंग लिस्ट क्रिएट होती है, या कुछ और टेंशन स्कीम्स चलती हैं, या कुछ रिकलेक्शंस होती हैं पास्ट की, या फ्यूचर प्लानिंग होती है. चैंटिंग करते हुए 2 ही चीजें होती हैं ज्यादातर. आप पहली बार तो नहीं आए ना, ये नॉट वन ऑफ दोस. सो जब माला करते हैं ना, उस टाइम 2 ही चीजें होती हैं, या पास्ट की रिकलेक्शन या फ्यूचर प्लानिंग. प्रेजेंट में बंदा नहीं होता, इसीलिए तो माला अच्छी नहीं हो रही होती, क्योंकि प्रेजेंट में तो एक्टिविटी वही हो रही है ना, माला. वो पास्ट या फ्यूचर वही चल रहा होता है. बट इट्स फाइन. इनिशियली वी आर ऑल एज साधका. अभी हम लोग सिर्फ साधका हैं. हमें फिलहाल वी आर एट द बोलते हैं ना ग्रास रूट लेवल. we have to get into the practice of doing things right now. What is important is get into the practice of doing things. अभी गाड़ी को जंग लगा हुआ है, उसको स्टार्ट करो धीरे धीरे. उसको just let it run for some time. Let it run and then it'll give you mileage, you know. So उसकी oiling और वो सब, you know, it'll all happen. Let it run for some time. And those things what we are saying, you know, the mood, bhav, attentiveness, those things, it's a lifelong journey. Those things will come eventually.
उस सब के लिए एफर्ट लगता है, सब चीजों के लिए एफर्ट, अटेंटिवनेस के लिए भी एफर्ट ही लगता है. बट राइट नाउ फोकस दैट एफर्ट ऑन गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स. एक बार मेरे को थोड़ा एक एग्जांपल याद आ रहा है. एक बार एक भिखारी किसी घर में जाता है भीख मांगने. लेडी बाहर निकलती है और वो भीख मांगता है कि माँ कुछ दो. वो क्या करती है, वो लेडी जली कुछ एंग्री होती है, क्या होता है, गुस्सा होता है, हस्बैंड से लड़ी होती है, क्या होता है, हाँ, तो तपी हुई होती है. फिर वो क्या करती है, चूल्हे की राख उठा के उसके पॉट में डाल देती है. वो खुशी खुशी वापस आ जाता है. हाँ, वो आके बाकी भिखारी या कोई उससे पूछता है, भैया तुम खुश क्यों, उसने तो तुम्हें राख दे दी, तुमने भीख, तुमने मांगे आटा या चावल या तुमने खाने की चीज मांगी, उसने तुम्हें राख दे दी. वो तो एटलीस्ट शी इज बिगन गिविंग, एटलीस्ट उसने देना तो स्टार्ट किया. कुछ भी, कल को अब मैं रोज जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो देगी. आज राख दी है, कल को कुछ और, सो सिमिलरली लेट्स ऑल गेट इनटू द हैबिट ऑफ performing these devotional service. क्योंकि अभी तो our situation is we are all caught up in our day to day lives. हमारे को टाइम, हमें यही नहीं समझ आता कि हमें टाइम कैसे मिलेगा माला करने का. Is that not a problem? Everyone, सबकी प्रॉब्लम वही है कि हमें टाइम कैसे मिलेगा. हम टाइम ही नहीं दे पाते, निकाल पाते. तो let's get right now, don't worry about quality. Don't worry about quality. Have that desire in you. Yes. कि हाँ मेरे को अटेंटिवली माला करनी है, हो नहीं रही. Have that prayerful mood, yes, but right now the focus should be on starting the engine, getting into the habit of doing it, putting an effort of doing it daily, standardizing it, putting a discipline in it, putting a discipline into the activity कि हाँ रोज करनी है, standardizing it कि हाँ ऐसा नहीं कि एक दिन एक कर ली, एक दिन 50 कर ली, और फिर पता नहीं एक दिन बहुत बड़ा. स्टैंडर्डाइजिंग इट. एवरी डे हम 3 रोटी खाते हैं ना, सिमिलरली 3 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, जो भी है. सिमिलरली दिस आल्सो, एवरी डे वी गो टू ऑफिस, एवरी डे वी टेक शावर, एवरी डे वी ड्रॉप किड्स टू स्कूल, एवरी डे वी डू अदर थिंग्स, सिमिलरली डेली एक्टिव, वी नीड टू गेट इनटू डेली प्रैक्टिस. एंड देन क्वालिटी, हैविंग डेवलप दैट डिजायर, यस मेरे को क्वालिटी भी लेकर आनी है इसमें, बट इट विल कम लेटर. Was that your question or not? So, एक second, sorry. We need to move this car. It's Honda AM ending with 446. Black color, black or blue. 446. 4. बस मतलब इस सवाल में ये भी था कि हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो फोकस हम ऐसा ना हो जाए कि हम फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग हम प्रैक्टिसिंग करें. तो वो बात है कि हम भाव, क्योंकि भगवद गीता में जैसे कृष्ण ने साफ लिखा है कि अगर भाव नहीं है आप जो मर्जी कर लो, आप वहां पे पहुंच ही नहीं पाओगे. सी देखो वो है भगवान में बोलते हैं कि अगर किसी इसमें प्रेम नहीं है, ओनली वी कैन ओनली गो बैक टू गॉड हेड व्हेन वी डेवलप प्रेम, भगवान के प्रति प्यार. हाँ, पर प्यार अचानक नहीं बन जाता. प्यार के लिए साधना भक्ति करनी पड़ती है. साधना भक्ति मतलब ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज ए राइट नाउ वी नीड टू डू इट एज अ ड्यूटी कि मेरी ड्यूटी है. अभी मैं बीमार हूं, जैसे एक कोई इंसान बीमार होता है, उसको डेली डोज ऑफ मेडिसिन लेनी पड़ती है, तभी वो संतुष्ट वो सब होता है ना. तो ऐसे ही सिमिलरली हमें डेली डोज ऑफ मेडिसिन लेनी है. डेली हमें अपनी चित्त को, इट्स लाइक ए डिटर्जेंट. हाँ, ये वो धुनौती, एवरी डे इट्स क्लीनिंग इट, एवरी डे इट्स क्लीनिंग इट, वो अंदर से क्लीन कर रहा है. नो मैटर आपको, नो मैटर हम सब कितना अटेंटिवली कर रहे हैं, डजंट मैटर, समथिंग इज हैपनिंग. अटेंटिवली करेंगे तो वो घस के धो रहा है अंदर, पर नहीं भी कर रहे तो वो कर रहा है, उसको सॉफ्टन कर रहा है. आप सोक कर रहे हो उसको डेली, वो कर रहा है, कुछ हो रहा है. टाइम लगेगा, पर एज अ सेड, short answer is the same what I told you earlier also, which is right now let's all get into the habit of doing it as a duty. धीरे धीरे वो भी डेवलप होगा, पर वो होगा भगवान की दया से ही.
भगवान, और उसके लिए भगवान से प्रे करिए, एवरी डे प्रे। तो बेसिकली इंटेंशन कैसे बना के रखेंगे इसमें ना? इंटेंशन डेली करने की। हाँ, क्योंकि वो भक्ति, आप भक्ति कर सकते हो भाव से, भाव आता है प्रैक्टिस से, लेकिन प्रैक्टिस भी है, अगर भाव नहीं होगा तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप इतनी अच्छी। तो ये काइंड ऑफ इट लीड्स टू द पॉइंट कि जहाँ तक कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, वो इंटेंशन मेंटेन करनी क्या है? इंटेंशन तो देखिए, इंटेंशन तो आती है आपकी संघ से, डिवोटी एसोसिएशन से। सो बाय कमिंग टू दिस प्रोग्राम यू विल बी, इट्स बाय एवरी वीक, इस तरह इस प्रोग्राम में आने से आपको वो कन्विक्शन और वो सब डेवलप हो रहा है, सटली हो रहा है। तो यही कोई और तरीका नहीं है, तरीका यही है जो आप कर रहे हो, जस्ट बी रेगुलर। नहीं प्रभु, मंगला आ जाओ संडे को। एग्जैक्टली मेरे से प्रभु जी, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मंगला आरती अभी जैसे जो आप बोल रहे हो ना, जैसे माला मैं भी कर रहा हूँ, जैसे उसमें क्या है कि बहुत सारी थॉट्स आती हैं, जैसे बता रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कभी किसी की। एंड देन आई यूज्ड टू इवन थिंक अबाउट कृष्णा और उनकी फोटो इमेजिन करने के। मैंने अर्जुन सखा प्रभु जी से पूछा कि करना क्या चाहिए, वो कह रहे हैं कुछ नहीं करना, इमेजिन नहीं करना, कह रहे हैं सिर्फ जो आप बोल रहे हो उसको सुनो बस। सो अल्टीमेटली द ईयर्स हैव टू गेट टू ट्रेन योरसेल्फ टू हियर दैट नेम व्हिच यू आर स्पीकिंग। तो इस बार जो मैं मंगला आरती के लिए गया, वो डिसअपीयरेंस वाले दिन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ डूइंग दिस, आई एक्सपीरियंस कि वो जो 2 घंटे थे पता भी नहीं चले कब गए। एंड देन इट वाज लाइक बहुत ही कम थॉट्स आई, यू नो, एंड इट वाज मेनली फोकस्ड अपॉन द हियरिंग ऑफ द नेम। ऑल्दो और भी लोग कर रहे थे, उससे मैं इतना नहीं डिस्टर्ब हुआ इस बार, एंड इट वाज डिफरेंट। सो इट्स जस्ट लाइक मे बी स्लोली, दैट्स माय एक्सपीरियंस। तो मंगला कम टू टेंपल आल्सो, संडे मंगला +1 टू दैट। क्या होता है कि ना हम लोग ऑफ कोर्स हमें ये नहीं पता होता कि हम गलत क्या कर रहे हैं, उसके लिए वी हैव टू सी द बेस्ट, वो बोलते हैं ना बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट यूज केसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी हैव टू सी दैट। एंड उसके लिए घर पे तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा तो कोई यही नहीं, यू नो। तो उसके लिए मंदिर आके देखें और माला कैसे करते हैं लोग। प्रभु जी, हफ्ते में एक बार मंदिर संडे चलो चलते हैं। हाँ चलो कल। एक्चुअली पुट इट ऑन हिम, लेट हिम टेक यू। मैं माला के यूजुअली सिर्फ 2 राउंड करता हूँ। लास्ट टू लास्ट संडे आई वेंट टू फॉर मंगला आरती फर्स्ट टाइम, एंड आई डिडंट नो हाउ बट आई कुड डू 14 राउंड्स इन वन गो। इट वाज लाइक अपने आप ध्यान रख गया। So definitely try it out. So not tomorrow, the day after. Just letting you know. And we know your address. We have it. Let us know his address. Anything else? So once again, to the new attendants, you know, please, I hope you got something out of it today, and my only request and prayers to you is please keep coming, get it associated. It's only investment of Friday evening, 2 घंटे की investment है, उसके बाद तो you can do whatever you want before and after. So please keep coming, and this is, you will find common people here. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का कोई selfish interest है, motivation है, ये वो, you know, it's a good satsang, you know. So please, it's a nice group of people. Thank you. स्वर्ण कृष्ण प्रभु की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। So now, what's the plan?